صحابہ نے سوچا اب حضور ان کے خلافت کی بددعا کریں گے، مگر حضور کا جملہ سنو، روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہم اہدی ہذہ القوم، اللہم اہدی ہذہ القوم، مولا میری اس قوم کی ہدایت فرما، مولا اس قوم کی ہدایت فرما۔ کیا پتا چلا ایسے کردار کو، ایسے اخلاق کو، ایسے گفتار کو، ایسے طرز زندگی کو، ایسے نظام حیات کو، ایسے شعور بندگی کو جب غیر مسلم پڑھتا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے اگر دنیا میں کوئی ایک مذہب سب سے اچھا، سب سے سچا ہے وہ میرا اسلام ہے، میرا اسلام ہے۔ جب حالیہ کے دنوں میں انگلینڈ کا وہ آدمی مسلمان بنتا ہے، اس کے دوست نے کہا تم نے اسلام کو سرچ کر کر کے انٹرنیٹ سے اسلام کو قبول کر لیا، اب بتاؤ تمہیں اسلام میں سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے، سب سے سونا کون لگتا ہے، سب سے پیارا کون لگتا ہے، سب سے سندر کون لگتا ہے، سب سے اچھا کون لگتا ہے، سب سے بہتر کون لگتا ہے، سب سے سکسیسفل کون لگتا ہے؟ تو انسان کہتا ہے اسی اسلام کے اسپیلنگ پہ غور کرو، اسلام میں 5 حروف ہے، اسے ٹکڑا ٹکڑا کرو، اس پہ غور کرو، اس غور کرنے سے جو نتیجہ نکلے گا مجھے وہی سب سے اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا اسلام پہ کیا غور کرے؟ وہ آدمی کہتا ہے تم نے پوچھا ہے نا مجھے سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے سونا، سب سے سندر کون لگتا ہے؟ آؤ اسی اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے ایک ایک ہر الگ الگ کرو، اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا سنو اسلام میں 5 لیٹر ہے، پہلا لیٹر ہے آئی، دوسرا لیٹر ہے ایس، تیسرا لیٹر ہے ایل، چوتھا لیٹر ہے اے، پانچواں لیٹر ہے ایم، یہ 5 لیٹر مل کے اسلام بنتا ہے۔ اس کے دوست نے کہا ہاں، کہا پہلا لیٹر ہے آئی، آئی کا مطلب میں، بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ پہلا لیٹر آئی، آئی کا مطلب میں، کہا دوسرا لیٹر ایس، ایس کا مطلب شال، آئی شال، آئی شال، یعنی انگریزی گرامر میں فیوچر ٹینس میں جب مقالے، جب سیغے بنائے جاتے ہیں تو آئی شال کہا جاتا ہے نا، فیوچر ٹینس میں آئی شال کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے آئی سے اسلام کے آئی سے آئی کا مطلب میں، ایس کا مطلب شال، آئی شال۔ کہتا تیسرا لیٹر ہے ایل، تیسرا لیٹر ہے ایل، ایل کا مطلب ہوتا ہے لو، لو کا مطلب ہوتا ہے پیار، یعنی آئی شال لو، آئی شال لو۔ کہتا چوتھا لیٹر ہے اے، اے کا مطلب اینی ٹائم، اے کا مطلب اینی ٹائم، آئی شال لو اینی ٹائم، آئی شال لو اینی ٹائم۔ آخری لیٹر ہے ایم، ایم کا مطلب محمد ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیدار مدینہ۔ کیا بات ہے، کیا نکتہ بیان کیا، اسلام کا پہلا لیٹر آئی، آئی کا مطلب میں، دوسرا لیٹر ایس، ایس کا مطلب شال، آئی شال، تیسرا لیٹر ایل، ایل کا مطلب لف، لف کا مطلب پیار، آئی شال لف، یعنی میں پیار کروں گا۔ چوتھا لیٹر اے، اے کا مطلب اینی ٹائم، میں پیار کروں گا اینی ٹائم، میں پیار کروں گا اینی ٹائم۔ آخری لیٹر ایم، ایم کا مطلب محمد، یعنی میں پیار کروں گا اینی ٹائم اپنے پیارے محمد رسول اللہ۔ بولیے بولیے سب سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 5 نعرہ پنڈتوں کا ایک نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ I shall love any time محمد، پھر بولیے سبحان اللہ۔ کیا پتا چلا یہ اسلام ہے جو سکسیسفل ہے۔ دنیا کہتی ہے اسلام کو مٹا دیا جائے، دنیا کہتی ہے اذانوں کو بند کر دیا جائے، دنیا کہتی ہے مسجدوں کو مسمار کر دیا جائے، مگر دنیا والوں کو بتا دینا یہی وہ دھرم ہے، یہی وہ ریلیجن ہے، یہی وہ مذہب ہے جس پر کبھی سوال نہیں آتا، ورنہ دنیا کے سارے مذاہب، سارے ریلیجن پہ سوال آتا ہے۔ آج 1400 برس سے دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، مگر اسلام ہے پیچھے آنے کا نام نہیں لیتا، آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کون ہے جو اسلام کو سپورٹ دے رہا ہے؟ تو جواب ملے گا اسلام کے سپورٹر ایک نہیں ہے، انیک ہے۔ مدینے والا اسلام کے سپورٹ میں ہے، بغداد والا اسلام کے سپورٹ میں ہے، اجمیر والا اسلام کے سپورٹ میں ہے، بریلی والا اسلام کے سپورٹ میں ہے، بھائی بدر والا
सपोर्ट में जब कोई रहता है ना, वो डरता नहीं। डरता क्या? आप अगर बस्ती में किसी से झगड़ा हो जाए, अब बस्ती के सरदार आपके पक्ष में खड़े हो, आप जल्दी से डरेंगे नहीं? बोले डरेंगे नहीं, क्योंकि सरदार मेरे सपोर्ट में खड़ा है। आपका अगर टाउन में किसी से झगड़ा हो जाए और आपके टाउन थाना का कांस्टेबल आपके सपोर्ट में खड़ा हो, आप डरेंगे नहीं। क्या पता चला? अगर पुष्ट पनाही में सपोर्ट में कोई खड़ा रहता है, वो डोलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है। आई इस्लाम 1400 साल से तू जो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब अल्लाह के सारे नबी तेरे सपोर्ट में खड़े हैं, अल्लाह के सारे वली तेरे सपोर्ट में खड़े हैं। लाजवाब लाजवाब। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे में को ताल्लुक नहीं पैमाने से है आया यूरिशो तादार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सलाम खाने से, कश्ती हम्मा जमाने में सहारा तू है, असरे नाराब है धुंधला सा सितारा तू है। वाह वाह लाजवाब लाजवाब। दुनिया वाले कह रहे इस्लाम को मिटा दो, सारी दुनिया 1400 साल से पीछे पड़ी हुई है। और मैं कह दूं अगर 1400 साल से सारी दुनिया किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे रिलीजन के पीछे पड़ जाती ना, वो रिलीजन कब का तबाह हो जाता, मलिया मेट हो जाता है। मगर ये तो इस्लाम है, सब पीछे पड़े हैं, ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए कि रेलगाड़ी में डब्बा भी होता है, इंजन भी होता है, और जो पीछे रहता है उसे डब्बा कहा जाता है, जो आगे रहता है उसे इंजन कहा जाता है। सारी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है, इसका मतलब सबके सब डब्बा है, इस्लाम सबसे आगे, इसका मतलब इस्लाम सबका इंजन है। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुबारक ज़ैद कादरी, सर लंबे भीमराजपुर शेख महल्ला, गौसे आज़म कमेटी। अरे वाह वाह वाह। किसी को दाढ़ी से आपत्ति है, किसी को टोपी से आपत्ति है। क्या एग्जाम्पल है? अरे बातें बहुत है, वक्त कम है। समझ रहे हैं? आपको वक्त दिया जाएगा, नो टेंशन। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन दे देगा। अच्छा अच्छा, 150 रुपए खा के आपका बहन लिखता जाता है। चलिए ठीक है। किसी को दाढ़ी से आपत्ति है, किसी को टोपी से आपत्ति है, किसी को मुसलमान की शक्ल सूरत से आपत्ति है, किसी को मुसलमान के किरदार और सुबह शाम लेलो नहार की जिंदगी के तर्ज अमल से आपत्ति है। हम कहते हैं आज ये आपत्ति तुम्हें हो रही है, अगर ये आपत्ति 1857 के विद्रोह के समय तुम्हें होती तो आज भारत आजाद मुल्क ना हो पाता। जानते हो 1857 के विद्रोह के समय जिन लोगों ने सबसे ज्यादा तादाद में इस देश से वतन महारत के लिए अपना लहू बहाया था, उनमें ज्यादातर तादाद दाढ़ी वालों की थी, टोपी वालों की थी। और अच्छा वाह, क्या हिस्ट्री है भाई। हमने रिवायतों में क्या पढ़ा है, तारीख बता रहे हैं। हमने रिवायतों में पढ़ा है दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक हर तीसरे चौथे पेड़ पर मुसलमान उलमाए किराम की लाशें लटकती हुई नजर आती थी। अंग्रेज इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया करते थे, क्योंकि देशद्रोहियों के साथ लड़ने के लिए पहली आवाज अगर किसी की उठती थी वो इस मुसलमान की आवाज उठाता था। नहीं, हक कोई वाह। हम क्या थे? सुनो मेरे दोस्तों, हमने देश के लिए क्या नहीं किया है, मगर आज हमें क्यों रुस्वा किया जाता है? हमने किसका क्या बिगाड़ा है? हाँ, कुछ शर्मपसंद ऐसे हैं हमारी कौम में जिनकी करतूत की वजह से सब पर उंगली उठाई जाती है, मगर सब तो वैसे नहीं है। मजहब तो गलत नहीं सिखाता, रिलीजन तो किसी को गलत तालीम नहीं देता, रिलीजन तो सबसे अच्छाई की तालीम देता है। कुरान कहता है वमन क़तला मुमिनन फकअन्नमा क़तलन नास जमिया। कोई अगर बेकसूर किसी एक को कत्ल करता है, पूरी जमात को कत्ल करने के बराबर उस पे जुर्म होता है। हमने ऐसा नहीं किया था, मगर हम पे ऐसा थोप दिया गया, ऐसा बता दिया गया, ऐसा फैसला कर दिया गया कि सारी दुनिया आज हमें गलत नजर से देख। हाँ, अहमदुल फतह भाई हमारे शायर हिंदुस्तान, माशाल्लाह आ गए सुभान अल्लाह। हाँ, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। तो बोलिए इस्लाम दुश्मन ताकतें 1400 साल से पीछे लगी हुई है, मगर इस्लाम पीछे आने वाला है। बोलिए आने वाला है नहीं। रोज रोज कितने ऐसे हैं, कोई बिलियनियर है कलमा पढ़ रहा है मुसलमान बन रहा है, कोई मिलियनियर है कलमा पढ़ रहा है मुसलमान बन रहा है, कोई फिल्म एक्टर है कलमा पढ़ रहा है मुसलमान बन रहा है, कोई क्रिकेटर है कलमा पढ़ रहा है मुसलमान बन रहा है, कोई वैज्ञानिक है कलमा पढ़ रहा है मुसलमान बन रहा है। पूरी दुनिया में नजर दौड़ाओ, आप देख लो इस्लाम
सरजमीन का डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है, इंटरनेट उठा के देख ले, इस्लाम का ये जो ग्राफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंग्लैंड का डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है, if any religion had chance of ruling the all over England and Europe within next 100 years, it could be Islam। कहता है अगर आइंदा 100 सालों के अंदर इंग्लैंड और यूरोप में कोई एक मजहब तरक्की कर सकता है, इट कुड बी इस्लाम, वो मजहब ओनली इस्लाम होगा। समझ रहे हैं? हमारी अजानों को निशाना ना बनाओ, हमारी अजानें सुनने के लिए आप ही के बहुत से लोग बेताब रहते हैं। समझ रहे हैं? हमारी अजान में वो मिठास है। एक पाकिस्तान का क्रिकेटर है, उसका नाम है मुश्ताक अहमद। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा, इतनी प्यारी बात कही, आप सुनेंगे तो मचल जाएंगे। मुश्ताक अहमद पुराना क्रिकेटर है, वो अपने एक इंटरव्यू में कहता है 2004 के इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट के सीजन में हम वर्ल्ड 11 की तरफ से चंद लोग इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे। कहता है उसमें हमारी टीम में न्यूजीलैंड के भी खिलाड़ी थे, इंग्लैंड के भी खिलाड़ी थे, वेस्ट इंडीज के भी खिलाड़ी थे, इंग्लैंड के भी खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, इंडिया के खिलाड़ी थे, श्रीलंका के खिलाड़ी थे। कहता है जब प्लास्टिक प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ तो शाम को मगरिब का समय हो गया। मुश्ताक अहमद कहता उस वक्त हमारी टीम का एक बल्लेबाज हुआ करता था जिसका नाम सईद अनवर है। मुश्ताक अहमद कहता है सईद अनवर उस वक्त हिदायत पे आ चुका था, कुर्ता पैजामा पहनता था, चेहरे पे दाढ़ी रखता था, नमाज पढ़ता था। लोग समझते थे ये जो अपना तौर तरीका चेंज कर दिया है, अब इसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, अब इसकी बैटिंग खराब हो जाएगी। मुश्ताक अहमद कहता है नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सईद अनवर दीनदार नेक नमाजी बनने के बाद भी मैदान में सेंचुरी पे सेंचुरी लगाया करता है। कौन कहता है? मुश्ताक अहमद कहता है सुनो, दिन में प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया, शाम का समय हुआ, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बालकनी में जहां हमारा ड्रेसिंग रूम था, ड्रेसिंग रूम में सब खिलाड़ी अपना पैड उतार रहे हैं, अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं। मगरिब का समय हुआ, सईद अनवर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बालकनी में खड़ा हो गया। खड़ा होके अपने कानों में उंगली डाल के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान देने लगा। मुश्ताक अहमद कहता है जब सईद अनवर ने मगरिब की अजान पुकारी, जितने उधर खिलाड़ी थे, कोई ईसाई था, कोई यहूदी था, कोई और था, कोई और था, मगर जब लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बालकनी से अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी है, पूरे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सन्नाटा छा गया है। जितने अंग्रेज क्रिकेटर थे आपसी गुफ्तगू में लगे हुए थे, सब के सब साइलेंट होके बैठ गए, चुप होके बैठ गए। मुश्ताक अहमद कहता है जब अजान खत्म हो गई, सईद अनवर नमाज की तैयारी करने लगा तो श्रीलंका का एक खिलाड़ी जिसका नाम मुरलीधरन है, मुश्ताक अहमद कहता है मुरलीधरन मेरे पास आता है, आके कहता है ओ मिस्टर मुशी, कैन आई आस्क यू ए पर्सनल क्वेश्चन? ओ मिस्टर मुशी, क्या मैं तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूँ? मुश्ताक कहता है पूछो पूछो। उसके बाद मुरलीधरन क्या कहता है? कहता है दैट वाज ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट इज टचिंग माय हार्ट। कहता है ये जो सईद अनवर अजान में रहा था, ये बड़ा अच्छा लगा, इसने मेरे दिल को छू लिया है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरे मदीना। जब अजान का ये आलम है तो नमाज का आलम क्या होगा? जब अजान का ये आलम है तो नमाज का आलम क्या होगा? जानते हो हमारे नमाज में खड़े होने के स्टाइल को देखकर गैर मजहब कलमा पढ़ता है, मुसलमान बनता है। आप दूसरे रिलीजन में नजर डालें, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई दूसरा स्थल हो, कहीं भी देखें अमीर का ठिकाना आगे है, उसके बाद वाले का पीछे है, दलित का सबसे पीछे है। यानी जाति धर्म के भेदभाव दूसरे धार्मिक स्थलों पे तो देखी जाती है, मगर मुसलमानों की मस्जिद ऐसी मस्जिद है जहां घर का नौकर जो सुबह शाम मालिक से चाबुक में मार खाता था, अगर वो पहले मस्जिद में जाएगा, मौसिम साहब के बगल में बैठेगा और मालिक अगर बाद में आएगा अपने गुलाम के पीछे बैठेगा। एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। और खुदा ने क्या दिखाया है, खुदा की शान देखिए। जो नौकर घर में मालिक से चाबुक में मार खाता था, जोहर का टाइम हुआ, वो नौकर पहले मस्जिद पहुंच गया है, मौसिम साहब के ठीक बगल में खड़ा हुआ है, और जो मालिक घर में थोड़ी थोड़ी सी बात पे चाबुक लगाता था वो देर से गया है, ठीक अपने नौकर के जस्ट पीछे वो भी खड़ा हुआ
बाजी पलटती है, जो घर में मार खाता था वो आगे है, जो पीटता था वो पीछे है। मगर जब दोनों सजदे में गए हैं तो सजदे में नौकर का जहां पांव है, मालिक का वही पे सर नजर आ रहा है। जहां पर नौकर का पांव है वही मालिक का सर नजर आ रहा है। यानी परवरदिगार ने बता दिया, बड़ा छोटा, ऊंच नीच, भेदभाव, काला गोरा अपने शासन के इलाके में चलाना। मस्जिद खुदा का घर है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ जो आएगा अल्लाह की बारगाह में नवाजा जाएगा। लाजवाब, क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या समझते हो तुम इस्लाम को? बहुत अच्छा। क्या समझते हो इस्लाम को? नॉर्वे सिटी का एक आदमी मुसलमान बनता है, कलमा पढ़ता है। नॉर्वे सिटी का एक आदमी जब कलमा पढ़ता है, लोग बोलते हैं इस्लाम में क्या अच्छा लगा, तुमने कलमा क्यों पढ़ लिया? उसने कहा इस्लाम में जो एक तौर तरीका है, सबको एक नजर से देखा जाता है। कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। आज तो भारत में इतने जाति प्रजाति हो गए हैं, दलित के हाथ के गिलास का पानी कोई राजपूत पीना नहीं चाहता। कहता ये छोटा है, ये बड़ा है। मैं कहता हूँ भाइयों, ये भेदभाव न करो, हर कोई इंसान है, किसी की रोजी कम है, किसी की रोजी ज्यादा है, उससे भेदभाव न करो। हमारे पैगंबर इस्लाम ने दुनिया को क्या सबक दिया था? जिसे लोग कहते थे काला, पैगंबर इस्लाम ने उसे बना दिया आला। बोलो बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, बिलाल जिसे लोग गुलाम कहते थे, आज बिलाल गुलाम नहीं है, आज बिलाल मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा का गुलाम बना है। जन्नत की हूरें भी मोहब्बत की नजर से बिलाल को देखा करती है। क्या पता चला? मुस्तफा की बारगाह में, अल्लाह के घर में, मस्जिद में जो आता है, अब छोटा नीचा, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा। नॉर्वे सिटी का आदमी जब मुसलमान बनता है, लोगों ने पूछा इस्लाम लाने का सबब बताओ। वो कहता है इस्लाम लाने का एक ही सबब है कि इस्लाम में छोटा बड़ा कुछ नहीं है, इस्लाम में गोरा काला कुछ नहीं है। हमारे अमेरिका में कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं। काले को नीची बिरादरी समझी जाती है और गोरे को ऊंची बिरादरी समझी जाती है। काला अगर किसी क्लब में, किसी रेस्टोरेंट में जाता है, अच्छे से उसकी चेकिंग होती है, उसके कार्ड को देखा जाता है, उसके आधार को चेक किया जाता है, यानी तरह तरह की जिल्लत का सौदा किया जाता है। मैंने सुना है मुसलमानों का एक धर्म स्थल है जिसे मस्जिद कहा जाता है। उस मस्जिद में फकीर भी जाता है, उस मस्जिद में बादशाह भी जाता है, उस मस्जिद में काला भी जाता है, उस मस्जिद में गोरा भी जाता है, उस मस्जिद में गरीब भी जाता है, उस मस्जिद में अमीर भी जाता है। और मैंने सुना है सब अगल बगल में लाइन से खड़े हो जाते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ रुकू करते हैं, एक साथ सजदा करते हैं, एक साथ अपने खुदा को आवाज देते हैं। कहता है मैं चेक करने के लिए नॉर्वे सिटी की जामे मस्जिद के बाहर अपनी कार को पार्किंग में लगा के, अंदर एयर कंडीशन ऑन करके, जुमा के दिन दोपहर के समय मैं जामे मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया, अपने कार के अंदर एसी ऑन करके बैठ गया कि मैं देखना चाहता था मस्जिद के अंदर जाने वाले इकट्ठा बैठते हैं या जुदा जुदा बैठते हैं। कहता जुमा की अजान हो गई, मैंने देखा काला आया, गेट से अंदर गया, गोरा आया, वो भी अंदर आया, गरीब आया, वो भी अंदर गया, अमीर आया, वो भी अंदर गया, साइकिल वाला आया, अंदर गया, स्कूटर वाला आया, अंदर गया, मर्सिडीज वाला आया, अंदर गया, BMW लेके आया, अंदर गया, रेंज रोवर लेके आया, अंदर गया, रोल्स रॉयस लेके आया, वो भी अंदर गया। कहता मैंने सोचा अंदर तो सब लोग गए हैं, मगर हो सकता है अलग अलग होकर बैठेंगे, जुदा जुदा बैठेंगे। कहता मेरा दिल नहीं माना, मैंने सोचा अंदर जाके चेक करता हूँ। कहता मैं जब अंदर थोड़ी देर बाद जाके चेक करता हूँ, क्या देखता हूँ सब बिल्कुल अगल बगल में खड़े हुए हैं, सब बिल्कुल लाइन से खड़े हुए हैं। नाटा उसी में है, लंबू उसी में है, काला उसी में है, गोरा उसी में है। इमाम उनका जो आवाज देता है, उसकी आवाज पे ये लब्बैक कहते हुए इमाम जैसी जैसी हरकत करता है, ये वैसे वैसे झुकते नजर आते हैं। इमाम खड़ा होता है, ये खड़े होते हैं। इमाम सजदे में जाता है, ये सजदे में जाते हैं। कहता इतना तो मैंने देख लिया, अब भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली थी। मैंने सोचा था देखता हूँ ये आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, छुड़ा के भाग जाते हैं। कहता नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ा गया, सलाम के बाद मैंने क्या देखा, काला गोरे से मुसाफहा कर रहा है, गरीब अमीर से मुसाफहा कर रहा है, छोटा बड़े से मुसाफहा कर रहा है, बादशाह फकीर से मुसाफहा कर रहा है। जब मुसलमानों की इबादत गाहों के इस सिचुएशन को आंध्र प्रदेश की एक लेडी, एक महिला शिक्षाविद सरोजिनी नायडू ने देखा था 50 बरस पहले। सरोजिनी नायडू कहती है द डेमोक्रेसी ऑफ इस्लाम इज इम्बॉडीड 5 times a day when the poor man and king kneels
side by side and proclaim God alone is great. कहते इस्लाम की ये खूबसूरती मुझे बहुत अच्छी लगती है जब एक गरीब और एक बादशाह अगल बगल। नए नए नात और मुशायरे के लिए MG मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।